everyone and welcome back to yet another video. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं about components of food. So in this video हम इस चैप्टर को स्टार्ट तो करेंगे ही but finish भी करेंगे because this is going to be a one shot video for components of food. We will also practice all the NCERT questions, so we have a long day ahead. Let's begin. So since we are talking about components of food, let's talk about food for a while because why not? For breakfast I had poha, which is a very common Indian breakfast. For lunch, I had idli because, well, I like idli. And for evening snacks, I was craving a little bit of samosa, so I had that. And for dinner, I had a proper Indian dinner where I had roti, I had a sabzi, I had some rice, some salad. Okay, so this is something which a diet of a normal Indian household looks like. Of course, a little bit samosas here and there. थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं खाने को. If I talk about the famous food of Punjab, I think सबको ये पता होगा कि वहाँ पे मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, लस्सी, घी, all this is very very famous, okay? But if I talk about Andhra Pradesh, okay, there you will have things like rice with rasam, tuar dal, kundru, okay, and of course pickle. So ये सब चीज़ें famous हैं आंध्र प्रदेश में. तो अगर मैं एक similarity की बात करूँ between these two different kinds of foods which I have listed, I will see that both of them have a item of grain, okay, जो कि है मक्कई in case of your Punjab and rice in case of your Andhra. Then if I see very clearly, I will notice कि both of them have a item of dal, which is pulses, okay, which is of course rajma in case of your Punjab and tuar dal in case of your Andhra, okay. Then we have a vegetable, item of vegetable that is very very important, which of course is mustard leaf or sarso in case of your Punjab and kundru in case of your Andhra. And then we have other items like curd, ghee, pickle, okay. So the question is why? Why is this a variety of food present on a plate? चाहे मैं बात करूँ पंजाब की, आंध्र प्रदेश की या फिर किसी और different state की, you will always find these different kind of items always on the plate. But the question is why? So let's try to find that out. So the answer to that is कि जो भी खाना हम खाते हैं, okay, why do we eat food? Why are you even eating food? The answer is not कि वो टेस्टी होता है. The answer is कि हम लोग खाना इसलिए खाते हैं because we have to, you know, give our body certain nutrients जो हमें खाने से ही मिलते हैं. Okay, these nutrients are, let's say, proteins, carbohydrates, fat, vitamins and minerals, and these are very 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 important for your body. Okay, और ये तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे खाने से. Okay, so किसी एक खाने में ये सब तो तुम्हें मिल नहीं जाएंगे. Of course, you have to have different kinds of food to get all these different nutrients. That is why you have that variety on your plate. Okay, in nutrients के साथ साथ you have something called dietary fibers, of course, and water, जो कि nutrients नहीं है but वो भी हमारी body के लिए बहुत बहुत important है, and that is why we have, you know, the variety of food that we have. So now let me tell you something you didn't actually know. तुम अपने खाने को टेस्ट कर सकते हो फॉर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. मतलब यू कैन टेस्ट एक्चुअली कि तुम्हारा कुक्ड फूड या अनकुक्ड फूड वेदर इट इज हैविंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और नन ऑफ देम. सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. हाउ डू वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड, ऑफ कोर्स कुक्ड और अनकुक्ड. ओके, इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन विच इज़ वेरी इजीली एंड रेडीली अवेलेबल. ठीक है, तो हम जिस भी फूड आइटम को टेस्ट करने वाले हैं उस पर हम लोग ये आयोडीन सोल्यूशन को यूज़ करेंगे एंड देन वील फाइंड इट आउट वेदर वी हैव कार्बोहाइड्रेट इन इट और नॉट. ठीक है, सबसे पहले बात तो जो हम लोग रोटी खाते हैं और चपाती खाते हैं, ओके, दैट इज मेड फ्रॉम व्हीट. ओके, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है स्पेशली इन दी इंडियन डाइट्स. राइट, तो अगर कभी टेस्ट करना, इफ यू आर हैविंग रोटी, don't use any sabzi, okay, just have a bite of roti and just you know, chew it for a long time. बहुत टाइम बाद तुम्हें एक स्वीट टेस्ट आएगा रोटी में से. ओके, इट इज गोइंग टू टेस्ट शुगरी और स्वीट. ओके, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर फाइनली यू नो कन्वर्टेड इनटू शुगर्स एंड स्टार्च. शुगर्स कैसी होती हैं? मीठी होती हैं. राइट, दैट इज वाई यू विल यू नो हैव अ स्वीट टेस्ट अगर तुम रोटी को बहुत टाइम तक च्यू करोगे. सो माई पॉइंट बीइंग कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में है इन द फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड स्टार्च. इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट एंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म इज शुगर एंड स्टार्च. ठीक है, तो हम जो भी फूड आइटम लेंगे, व्हाट वील डू इज हम उस पर 1 to 3 ड्रॉप्स डालने वाले हैं iodine solution, and then if the color of that point changes to blue black, okay, with application of your iodine, it means that starch
और sugar is available, which means कि हमारे उस food में definitely carbohydrate present है, ठीक है. So this is the test for carbohydrate. The turning of the point to blue black, okay, on application of iodine is the proof कि वो जो हमारा food है it is containing carbohydrate. Now let's talk about proteins, okay. इस टेस्ट के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा होता है सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके. सो व्हाट विल डू इज हम लोग जो भी फूड आइटम को हम टेस्ट करने वाले हैं उसको हम लेंगे, ओके, एंड देन वी विल ग्राइंड इट, ओके, इनटू अ मॉर्टल एंड पेस्टर. आई थिंक इट्स क्वाइट इजीली एंड रेडीली अवेलेबल. और जो भी वो ग्राइंड बनेगा उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में एंड थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे बिकॉज थोड़ा सोल्यूशन फॉर्म में वो आ जाएगा, ओके. एंड देन we will add about 2 drops of copper sulfate and about 10 drops of caustic soda, and then हम लोग थोड़ी सी देर wait करेंगे, okay. We'll let that solution rest for some time, and then if the color of the solution turns violet, that means my friends कि उसके अंदर proteins हैं. The food is rich in proteins, okay. So this is the very simple test for proteins for your food. And finally let's talk about fats, okay. और इस टेस्ट के लिए हमें बस एक बटर पेपर चाहिए या एक टिश्यू पेपर चाहिए, ओके. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द टिश्यू पेपर और जो भी फूड आइटम हम टेस्ट कर रहे हैं वो हम इस टिश्यू पेपर या बटर पेपर पे रखेंगे एंड वील जस्ट क्रश इट, ओके. एंड देन वील ओपन द पेपर एंड देन वील लुक एट द पेपर. और अगर पेपर पे एक ऑयली पैच हमें दिखेगा या पेपर ट्रांसलूसेंट हो गया होगा, दैट क्लियरली मीन्स कि उस फूड आइटम में फैट्स अवेलेबल थे, ओके. सो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल टेस्ट फॉर द 3 important components of food, which is carbohydrates, proteins and fats. Now let's address a very important question कि हमें इन nutrients की क्या ज़रूरत है. Why are these nutrients so important? ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं about carbohydrate. Well, carbohydrate एक बहुत ही important nutrient है because ये actually वो nutrient है which provides your body with energy. जो हम exercise करते हैं, जो हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, ठीक है. All the energy is given to us by different carbohydrates that we have, okay. And not only for that but also for the bodily functions. हमारे body में digestion हो रहा है, excretion हो रहा है and many things are happening. सबकी एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट से, ओके. सो ऑफ कोर्स तुमने सुना होगा कि पीपल जनरली हैव ग्लूकॉन डी जब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ग्लूकोज एक्चुअली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकॉन डी इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज विद वाटर, ठीक है. सो दैट इज व्हाई ग्लूकोज इज और कार्बोहाइड्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's talk about some sources of carbohydrates. So whatever is listed on the screen, rice, potatoes, maize, sugarcane, mangoes, okay, bajra, all these are very very important sources of carbohydrates. अगर मैं daily diet की बात करूँ, so we have roti, chapati, okay, or rice. Again, these are very very important sources of carbohydrates on a daily basis. Now let's talk about fats, okay. Fats are those nutrients again which provide energy to the body, in fact more than that of carbohydrates. तो जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उससे बहुत ज़्यादा हमें फैट से मिल सकती है, ठीक है. बट दी ओनली थिंग इज कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ठीक है. दैट इज वाई एक्सेस एनर्जी इन दी बॉडी इज स्टोर्ड एज फैट्स. और जब हमारे पास उतनी अमाउंट ऑफ फूड नहीं अवेलेबल होता तो दैट एनर्जी इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है. इसलिए किसी की बॉडी में ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, सो दे आर टोल्ड टू एक्सरसाइज बिकॉज दे हैव टू बर्न आउट दैट एक्सेस एनर्जी, ओके. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर टुगेदर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ओके. अब बात करते हैं अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फैट्स इन आवर डाइट, ओके. तो जो फैट्स होते हैं वी कैन डिराइव इट फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स. इफ यू टॉक अबाउट प्लांट्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स लाइक वी हैव सनफ्लावर ऑयल, वी हैव सोयाबीन ऑयल, ओके, ग्राउंडनट ऑयल. सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स which actually provide us with oil. And also we have animal sources like fishes, eggs and milk, okay, meat. So we have all these different sources of fats. Daily life की बात करूँ, so we have chapati which is actually a carbohydrate, but उसके ऊपर जो घी लगा होता है it actually is an example of a very healthy fat, okay. Now let's talk about proteins. Well, proteins are also very very important because they are called body building foods because they are used for development or the growth of our bodies and for the wear and tear or the wear and tear repair of the old or the dead cells in our bodies. So now let's talk about different sources of proteins in our diet. तो जैसे हमारे fat के साथ था we had plant and animal sources. Similarly for proteins we have plant and animal sources. In case of plants we have
different kind of pulses. Actually not all the pulses, ठीक है, सब pulses में protein नहीं होता है, we'll understand it a little later, but most of the pulses actually have proteins. We have soybean, we have peas, okay, and again we have the animal sources like fish, again meat, we have eggs, we have milk, ठीक है, तो ये सारे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं. और अगर मैं डेली डाइट की बात करूँ तो वी हैव अगेन अ कटोरी ऑफ दाल विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. इसलिए बोला जाता है कि हर रोज़ दाल खानी चाहिए, राइट. तो अब आई थिंक सब लोग खाएंगे भी. तो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की बात की थी स्टार्टिंग में. वी हैव प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, एंड वी हैव सम नॉन प्रोटीन्स लाइक डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, है ना. तो इन सब में से हमने 3 मेन विच इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, उनके टेस्ट्स, उनके सोर्सेज, उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जो वाइटामिन्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं बिकॉज दे एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस विच वी मे हैव, ओके. They are very very essential for our teeth, for our bones, for our eyes, okay, and for our gums. Again very very important. ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, ओके. एंड ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है बट इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमने वो कम क्वांटिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करनी ही है, ओके. तो अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, ओके, वी गेट इट फ्रॉम सोर्सेज लाइक पपायाज, मैंगोज, कैरेट्स, फिश ऑयल एंड मिल्क. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर आईज एंड आवर स्किन. Then we have vitamin C, okay. तो जनरली जो सारे खट्टे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं विच आर सार इन टेस्ट, ओके, सी से सिट्रिक एंड सी से विटामिन सी याद रखना, दे मोस्टली हैव विटामिन सी, ओके. तो जैसे भी वी हैव lemons, we have tomatoes, we have kiwis, okay, we have peas, all these have vitamin C. Chili is actually an example because chili actually sour नहीं होती है but it has vitamin C. It is very important for protecting our body against diseases, so it's a very important vitamin. Next we have vitamin D. अब लोगों को ऐसे लगता है which is actually not true कि vitamin D हमें सनलाइट से मिलता है, okay. It is not true. Vitamin D actually we get from all the sources जो listed है. We have milk, we have butter, we have liver, we have fish, okay. यहाँ से हमें vitamin D मिलता है but sunlight के अंदर वो usable form में convert होता है. That is why we should be taking enough sunlight for vitamin D, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है. So it's very very important for helping our body use the calcium for the muscles and the teeth, okay, or for the bones. Lastly, we talk about vitamin B, okay. We have vitamin B complexes. We have different kinds of vitamin Bs and they are generally used for the overall well-being of the body, okay. We get it from sources like wheat, राइस एंड लिवर, ठीक है. तो ये सब तो हमारे डिफरेंट वाइटामिन्स हो गए और तुमने देखा कि वी गेट इट फ्रॉम जनरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, बट ऑफ अ वेराइटी. ऐसे एक ही फ्रूट खाने से हमें सब नहीं मिल जाएगा, राइट. बट आजकल क्योंकि बहुत मिलावट है, बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन है इन द फूड वी ईट, पीपल ऑल्सो ट्राई एंड गो टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, जैसे वो लेते हैं आर्टिफिशियल वाइटामिन्स, ठीक है, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स. तो ये भी लोग ट्राई करते हैं बट ऑब्वियसली वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा कुछ भी लेने से पहले दिस शुड डेफिनेटली बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर एंड ओनली देन वी कैन टेक इट. बट ये जो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो तो डेफिनेटली हम खा ही सकते हैं, राइट, फॉर आवर प्रोटीन्स एंड वाइटामिन रिक्वायरमेंट. फाइनली वी टॉक अबाउट मिनरल्स, ठीक है. तो मिनरल्स भी वाइटामिन की तरह बहुत कम क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड हैं बट वी नीड देम, ओके, फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडीज एंड वी हैव मिनरल्स लाइक आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड आयरन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. सो यहाँ पे है हमारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन आवर बॉडीज फॉर आयोडीन, फॉर फॉस्फोरस, फॉर आयरन एंड फॉर कैल्शियम, ओके. सो वी नीड टू रिमेंबर दीज डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज वेल दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड एनीवे क्योंकि तुम्हें लेने भी हैं फॉर योर ओन हेल्थ, सो यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर दीज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. So now we have talked about all the nutrients जो हमने डिस्कस किए थे. Now let's finally discuss about dietary fibers and water. So talking about dietary fiber, ये एक nutrient नहीं है, okay? It's not actually a nutrient which is required by our body, but एक bulk में ये बहुत important चीज़ है, okay? It's also called roughage and इसका source जो होता है it's mainly from the plant sources like as I said, सारे के सारे pulses हमारे proteins नहीं होते हैं. Some of the pulses actually come in the category of roughage or your dietary fibers, okay. We have whole grain, we have certain actually fruits and vegetables which also come into the category of dietary fibers, ठीक है. They are very very important for removal of undigested food from your body, ठीक है. तो इसीलिए dietary fibers अपने diet में होना बहुत ज़्यादा important होता है. Then we have the last one which is
वाटर, ठीक है। तो वाटर अपने आप में एक न्यूट्रिएंट तो नहीं है, बट जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली पढ़े हैं, ठीक है, तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होता तो हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं ले पाते, इसलिए आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर, राइट। ऑल्सो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होता है, इट इज एक्चुअली रिमूव्ड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ वाटर, लाइक इन फॉर्म ऑफ स्वेट, इन फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। तो वी एक्चुअली ऑल्सो रिमूव द अनडाइजेस्टेड और नॉट रिक्वायर्ड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमारी डाइट में वाटर हम लोग डायरेक्टली वाटर के फॉर्म में लेते हैं। वी शुड ड्रिंक एक्चुअली 4 liters ऑफ वाटर डेली। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। एंड ऑल्सो हमारे डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी वाटर कॉन्टेंट होता है, जैसे क्यूकम्बर इज एक्चुअली 70% वाटर, ठीक है। ऑल्सो टमेटोज दे हैव वाटर। कुछ फ्रूट्स का तो नाम ही जैसे वाटरमेलन है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर, राइट। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्टिंग से हमने अभी तक बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, विच आर एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स, नॉन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो दे आर लॉट इन नंबर और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं उन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स के, राइट। सो वी शुड एक्चुअली प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग ऐसी डाइट जो कि इंक्लूड करे दीज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, ताकि हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी कभी ना हो, ठीक है। एंड सच अ डाइट विच इज हैविंग ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन प्रपोर्शनल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। सो यू कैन एक्चुअली गो होम एंड मेमोराइज करो, याद करो कि तुमने एक्चुअली आज क्या खाया, एंड यू कैन मेक अ प्लान ऑफ हाउ बैलेंस्ड योर डाइट इज। यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि तुम्हारे कौन से इंग्रेडिएंट में क्या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट या मिनरल, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर क्या था, एंड यू कैन एक्चुअली मेक अ plan as to how many nutrients or components of food are you ingesting. Wow, so whatever we can see on the slide right now is a very very tempting photo or photos, क्योंकि I think बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है। I think किसी ना किसी को डेफिनेटली भूख लग गई होगी ये स्लाइड देख के, सॉरी फॉर दैट, ओके। बट माई पॉइंट इज कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड विच आर लिस्टेड ऑन द स्लाइड राइट नाउ, एंड इवन मोर देन दी, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने अभी लिस्ट नहीं करे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फास्ट फूड, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कंप्लीटली जीरो हो जाने चाहिए डाइट में, यू शुड बी टेकिंग देम बट इन वेरी वेरी लेस एंड अगेन प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज, बिकॉज एक्सेस में लेने से क्या होगा, you can suffer from a disease which is called obesity, which is nothing but extra collection of fat in your body, ठीक है। तो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ता है या फिर मोटापा बढ़ता है, एंड इसकी वजह से बहुत सारे और डिजीजेस भी हो सकते हैं। सो दैट इज वाई वी शुड ऑलवेज चेक और कीप अ चेक ऑन द अमाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच वी आर टेकिंग। सो अब बात करते हैं कि हमने अभी तक जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में समझा है, ठीक है, वी हैव नोन कि ये हमें एक सोर्स से नहीं मिलते हैं, वी हैव डिफरेंट सोर्सेज जहां से हमें ये न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, राइट। बट लेट्स से अ पर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइस और पोटैटोज, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज ईटिंग पोटैटोज एंड राइस एवरी डे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान भूखा है या हंग्री है, नो, देयर इज इनफ फूड, राइट, बट देयर इज नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सब मिलेंगे जब आप सब टाइप का खाना खाओगे। दैट इज व्हाई बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's say a person does this, or he or she is eating the same kind of food on a daily basis. Then what can happen is that person can suffer from deficiency diseases which are caused by deficiency of these kind of components of food. And let's try to understand कि वो क्या होते हैं। सो प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कैन कॉज स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ एकदम से रुक सकती है, ठीक है, हाइट बढ़ना रुक सकती है। वी हैव स्वेलिंग ऑन फेस विच कैन हैपन, discoloration of hair which can happen, and skin irritation which can also happen, or skin disease can actually happen, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए जरूरी थे, फॉर एनर्जी, राइट। और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी बॉडी को, टायर्डनेस रहेगी बॉडी में। दैट इज वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारा एक टेबल है जो एनसीईआरटी में है, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, एंड ट्रस्ट मी यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली है क्या, राइट। सो वी हैव डिफरेंट वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जिनकी डेफिशिएंसी से हमें सर्टन डिजीजेस कॉज हो सकते हैं, और उन डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, दिस इज वॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस टेबल, राइट। सो फर्स्ट वी हैव विटामिन ए। हमने पढ़ा था कि विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर आईज एंड फॉर आवर स्किन, ठीक है। तो विटामिन ए अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आईज पे फर्क पड़ेगा, राइट। दैट इज व्हाई वी हैव लॉस ऑफ विजन विच कैन हैपन, पुअर विजन कैन हैपन, एंड और समटाइम्स कंप्लीट ब्लाइंडेडनेस कैन ऑल्सो हैपन। इसीलिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू हैव इट इन योर डाइट्स।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विटामिन B1. सो वी टॉक्ड अबाउट कि विटामिन बी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो वन ऑफ दैट इज विटामिन B1. ओके, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे डिजीज होता है बेरी. ओके, बेरी इज एक्चुअली द नेम ऑफ द डिजीज. B से B1 एंड B से बेरी ऐसे याद रख लेना. एंड होता क्या है बेरी से, वी हैव वीक मसल्स. ओके, एंड दैट कैन एक्चुअली कॉज अ वेरी बैड सिचुएशन इवन इन द यंगस्टर. Then we have vitamin C. Vitamin C की deficiency से we have a disease called scurvy. और scurvy में क्या होता है, we have bleeding gums, okay, and the wounds will take a longer time to heal. So vitamin C very important. Then we have vitamin D. विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं तो हमारी बोन्स बेंट हो सकती हैं. ओके, सॉफ्ट होके बेंट हो सकती हैं, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड रिकेट्स. ओके, फाइनली वी हैव कैल्शियम. कैल्शियम एक्चुअली इज अ मिनरल, और अगेन ये भी हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो अगेन अगर हम ये नहीं लेंगे तो वील हैव वीक बोन्स, विच इज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर एनीबडी. नेक्स्ट वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से कॉज होता है गोइटर. ओके, गोइटर इज एक्चुअली इज अ डिजीज, एंड इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स हमारे कुछ थ्रोट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं विच एक्चुअली अपीयर स्वोलन. ओके, एंड इट ऑल्सो कॉजेज मेंटल इंस्टेबिलिटी इन चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट वन विच इज आयरन, विच इज अ मिनरल, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हमें अनीमिया. ओके, विच इज एक्चुअली लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, जिससे होती है वीकनेस. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस. ओके, एंड देयर सिम्टम्स एंड व्हाट डेफिशिएंसी दे आर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अब बात करते हैं कुछ NCERT क्वेश्चंस की, एंड विद दैट वी विल फिनिश विद द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो ये है हमारे NCERT बैक क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन. पहला क्वेश्चन कहता है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. तो आई थिंक हमने काफी टाइम पढ़ लिया है कि वी हैव 5 मेन न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, देन वी हैव vitamins and finally minerals. Okay, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर एज ऑलरेडी सजेस्टेड कि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वो हमारे नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी. तो आई थिंक ये सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट है ना. कार्बोहाइड्रेट हमारा एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बॉडी को एनर्जी देता है. ऑल्दो हमारी बॉडी में एनर्जी फैट्स भी देते हैं, बट मेजरली वो थोड़ा सा स्लो है. ठीक है, एज आई ऑलरेडी सेड, डायरेक्ट एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से. सो दिस इज द आंसर फॉर ए. द न्यूट्रिएंट दैट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. तो आई थिंक ये भी बहुत क्लियर है. वी हैव प्रोटीन्स, ओके, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन वी हैव अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, विटामिन ए. ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से हमें डिजीज हो सकते हैं, विच इज फॉर योर मे बी नाइट ब्लाइंडेडनेस वगैरह. तो इसलिए विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आई साइट. देन अ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. तो जब भी बोन की बात आती है, कैल्शियम की बात तो आती ही है. ठीक है, तो कैल्शियम इज दैट मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोन हेल्थ. अगला क्वेश्चन है नेम 2 फूड्स रिच इन. ओके, तो हमें ऐसे 2 फूड बताने हैं जो रिच है इन फैट्स. तो फैट्स में वी हैव वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स, बट अगर हम सिर्फ 2 की बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट मिल्क, ओके, एंड मे बी बटर. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टार्च. तो स्टार्च क्या है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे जितने भी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है इन फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड स्टार्च. ठीक है, तो स्टार्च में वी हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, हमारे फूड में कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, वी कैन हैव इट इन फॉर्म ऑफ व्हीट और राइस, है ना. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज डाइटरी फाइबर्स. तो एज ऑलरेडी सजेस्टेड, डाइटरी फाइबर जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, we get it mainly from the plant products. So we can talk about whole grains. Okay, we can talk about whole grains. Okay, we can talk about potatoes, we can talk about pulses. Okay, so all these are having roughage. Then we have proteins. So proteins हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं, we have it in form of, let's say, pulses have proteins, है ना, and paneer also, tasty and protein rich. Okay, the next question says tick the statements that are correct. तो जो भी सही statements हैं हमें वो tick करनी है. So first is by eating rice alone we can fulfill nutritional requirements of our body. तो जैसे कि मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक
कोई भी टाइप का फूड खाने से हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते हैं, ठीक है. सो वी नीड अ वैरायटी ऑन आवर प्लेट. तो ये तो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, जो बिल्कुल सही है. अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो वी विल हैव ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग इन ऑन आवर प्लेट, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगे, ठीक है. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ आइटम्स. ट्रू, राइट. क्योंकि अगर वेराइटी ऑफ आइटम्स होगा तभी हम उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है. बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, dietary fibers, water, everything should be there. Okay, so yes. Then meat alone is sufficient to provide all nutrients in our body. तो ये तो वही बात हो गई कि राइस अलोन खाने से हो जाएगा. That's not true, right? तो राइस से नहीं होगा तो मीट से कैसे हो जाएगा, ठीक है. तो किसी भी अकेले कोई भी चीज को रोज खाने से your nutritional requirements are not going to be fulfilled. Okay, all right. The next question is fill in the blanks. Okay, first is डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है. तो विटामिन डी जो है हमें किस लिए जरूरी था, बिकॉज फॉर आवर बोन हेल्थ, राइट. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें होता है डिजीज कॉल्ड रिकेट्स. ऑलराइट. नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड बेरीबेरी. तो मैंने याद भी कराया था बी से बेरीबेरी एंड बी से विटामिन बी, तो इट इज गोइंग टू बी विटामिन बी. ओके, ऑलराइट. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड, आई थिंक ये हमने पढ़ा था अभी जस्ट रिसेंटली, स्कर्वी, ठीक है. इन विच योर गम्स आर गोइंग टू ब्लीड. ओके, स्कर्वी. नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडेडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड. क्योंकि विटामिन ए जरूरी है फॉर आवर आईज, ठीक है. और अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आईज में प्रॉब्लम आएगी विच इज ब्लाइंडेडनेस और समटाइम्स नाइट ब्लाइंडेडनेस. तो ये है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, राइट. तो ये थे हमारे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस. आई होप ये चैप्टर बहुत इजीली सबको समझ में आया होगा, बिकॉज इट्स क्वाइट एन इजी चैप्टर एंड क्वाइट अ interesting chapter also, ठीक है, because you get to know about the food you eat. So now you all can head off to Editive, practice the test, read the notes, and thank you so much for watching. Stay tuned for more.